I would see thousands of people going through a similar journey as mine without any of the resources that I had. I thought that I really need to do something which will bring this hope of life back into their lives. We call the people who work with us Sanjeevani Angels. First program which we took was to handhold them, navigate their way through the hospital, provide them with emotional support, help them maintain their relationships. So we started from Bombay, and as on date, we are working in 8 cities. They are playing a very important role where they can just sit with the patient and be very close to them like a friend, like a family member, and this really gives a very good impact on the treatment part of the patient. Sanjeevani's mission is to raise the bar of cancer care in India. After the treatment is over, then the patient is suddenly left hanging actually, and this was the time when one needs to work on the patient. After coming to Sanjeevani Wellness Center, I really came to know how to stay positive, how to remove your negative thoughts, how to keep yourself very busy, and how to go about your diet. इथे मला बरंच काही शिकायला मिळालं. डाएटिंगबद्दल समजलं, म्हणजे कसा डाएट घेतला पाहिजे, कसा नाही ते समजलं. योगा कसा करायला पाहिजे, कधी करायला पाहिजे ते समजलं. डान्स थेरपी होती त्याच्याबद्दल समजलं. डान्समुळे आपल्या लाईफमध्ये आपण कसं काय काय करू शकतोय, ते आपल्या लाईफमधल्या कशा मुवमेंट्स त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व करू शकतोय ते समजलं. पुन्हा इथे टॅपिंग थेरपी शिकवली, त्याच्यामुळेही बरंच काही समजलं. इथे येऊन बरंच खूप काही शिकायला मिळालं. मी पहिले खूप घाबरत भीत होते, खूप अजिबात बोलायची नाही वगैरे काही. पण इथे आल्यावर मला थोडं बोलायला वगैरे धीर आला आणि खूप चांगलं वाटलं मला इथे. इथला स्टाफ पण खूप चांगला आहे, खूप प्रेमाने वागतात. इतकं प्रेमाने पहिलं कोणी वागलं नाही, आता खूप छान मला वाटतं इथे. असं आता मला असं वाटतं की मी ह्या आजारातून बरी होईल, पण बरी व्हायलाच पाहिजे. So you basically handhold them in the hospital, then you bring them to the wellness center, let their whole personality blossom, and then rehabilitate them through the TIS certificate course. We wanted to have that approach that whatever they have gained through the journey remains in the field of cancer. So both the cancer survivor as well as the cancer patient, they both thrive together. And it is a unique cause because it was not enough for you to be a cancer survivor. It was not enough that you were ready to share your wisdom. What was also very important that this wisdom needs to be honed. They are also a cancer patient और वो आकर हमें बताते हैं तो एक प्रेरणा मिलती है. मरीज वही सोचता है कि अभी मुझे कैंसर हुआ तो मेरी स्टेज ख़त्म हो गई और उसके आगे मुझे जीने की तमन्ना नहीं रही, यही सोचता है. तभी मैं ये सर का जो सिखाया पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में वो उनको बताती हूँ, तो सचमुच में वो भी खुश हो जाते हैं और उनको एक हम दिल से बात करने वाला कोई मिल जाता है तो उनको भी तसल्ली मिल जाती है.
Another 5 years, we should be touching the life of, let's say, 1 million patients. We would like to make this intervention available to every cancer patient across the country. Ma'am, am I audible? Yes, you're audible, yeah. Yes. Okay. So, hello, good afternoon to everyone. First and foremost, a very warm welcome to all the lovely participants and everyone present here. I am Samita Nag. Right now, I am interning with Sanjeevani Life Beyond Cancer, and besides that, I am pursuing Masters in Social Welfare from Indian Institute of Social Welfare and Business Management. So today I welcome all of you on this webinar, which is an awareness program on cancer prevention and healthy lifestyle. Welcome all the dignitaries of Medical Assistance Cell of BP Poddar Institute of Management and Technology. We are very thankful to all of you. First, I would like to take few names. The Principal Ma'am of BP Poddar Institute of Management and Technology, Professor Dr. Shutopa Mukherjee. Professor B.N. Chatterjee, former Dean. Dr. Ananna Kanjilal, HOD Department of Computer Science and Engineering. Dr. I.V. Majumdar, HOD Department of Electronics and Communication Engineering. Dr. Nandita Sanyal, HOD of Electrical Engineering. Dr. Shabnam Sengupta, HOD of Information Technology. Dr. Ranjana Goswami, HOD Department of Applied Sciences and Humanities. Ms. Indrayut Datta, Departmental Engineer in charge, Department of Computer Application. Dr. Kakuli Kormakar Shur, Coordinator of Medical Assistance Cell of BP Poddar Institute of Management and Technology. Somnath Roy Chaudhary Sir, Assistant Professor of Computer Science Department. Shubhashish Das, Assistant Professor of Electrical Engineering Department. Pushpendu Kanjilal Sir, Assistant Professor of Electronics Department. And Abhijit Bhattacharya, Computer Application Department. Thank you to all of you. Now I would request Dr. Kakuli Kormakar Shur, who is the Coordinator of Medical Assistance Cell of BP Poddar Institute of Management and Technology, to share a few words regarding the program. Ma'am, over to you. Thank you, Shomita. Good afternoon to all. Today, we are very happy to organize a program with the NGO Sanjeevani Life Beyond Cancer. Respected Principal Madam, Professor Dr. Shutopa Mukherjee, our former Dean Sir, Professor B.N. Chatterjee, and all the HODs of IG Madam of Electronics and Communication Engineering, Nandita Madam from Electrical Engineering Department HOD, and Ananda Kanjilal Ma'am, HOD Computer Science Department, Ranjana Goswami Ma'am, HOD Applied Science and Humanities Department, Shabnam Sengupta Madam, HOD Information Technology Department, and Department in charge
of Computer Application Department, Meenakshi ma'am, and all the participants. Also, I want to thank Ms. Ruby Aluwalia madam, founder of Sanjeevani Life Beyond Cancer, and today's respected speaker, Sumki Begum ma'am, Program Coordinator Outreach of Sanjeevani Life Beyond Cancer, for giving us a chance to organize such a beautiful program with them. I hope that all of you will enjoy the session and we will get so many information on that. And our today's webinar topic is that early detection and prevention of cancer and healthy lifestyle. And lastly, I want to share with you that Samhita Nag, who is the host of today's webinar, he is the intern of the Indian Institute of Social Welfare and Business Management. So, Samhita, please. Thank you, ma'am. Thank you so much. Really, it's a great honor to be a part of such a great initiative. I'm looking forward to a great session ahead. So, before before proceeding with the program, before handing over to Sumki ma'am, I would like to introduce to all of you about Sanjeevani Life Beyond Cancer. So, basically, Sanjeevani Life Beyond Cancer is a pioneer in the field of comprehensive cancer care. It was established in the year a serving senior bureaucrat and a cancer survivor herself, who was diagnosed with triple negative stage 3 breast cancer in 2009. Since its inception in the year 2012 till now, Sanjeevani has enriched more than 2.5 lakhs underprivileged cancer patients. Presently, Sanjeevani is operational in 14 cities pan-India, and we work only with the regional hospitals. I would also like to take the liberty to introduce you about the flagship programs of Sanjeevani. The first and foremost program is known as Can Sahogi, which is providing psychosocial support to cancer patients. The teams, mostly cancer survivors themselves, currently help navigate patients through the numerous fronts that open up during their journey with cancer and its treatment. Post COVID-19, hand-holding and counseling made available over call too. So the next program is Satori, a wellness initiative for patients by Sanjeevani, which we are doing online right now due to COVID-19. Focusing on holistic well-being of patients, the intervention is designed to improve physical and mental strengths, thus improving their immunity and quality of life and hopefully reducing the chances of recurrence of the disease. Next is the third flagship program is CanSarthi. It is basically a rehabilitation program. It's a skill development program. In onco caregiving is targeted to train cancer survivors or those touched with cancer in family to become trained caregivers. Besides raising the bar of cancer care, this helps in opening up possible opportunities of employment for them. The last one is Can Chetna, which is an awareness program basically focusing on the prevention aspect, like what we are doing today. We conduct this Can Chetna program with schools, colleges, corporate, NGOs, clubs, society, and etc. This was all about Sanjeevani Life Beyond Cancer. This was just a gist about Sanjeevani Life Beyond Cancer. Would now request Sumki ma'am to share the screen, the PPT. Over to you, Sumki ma'am. Thank you so much, Samhita, for this beautiful introduction. So before starting, I would like to request everyone, please turn on your video ताकि मुझे पता चले आप लोग पीपीटी सुन रहे हो और सो नहीं रहे हो. ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सीरियस बातें अभी डिस्कस होने वाला है, तो थोड़ा नींद आ भी सकता है,
तो रिक्वेस्ट एवरीवन, आप अपने ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल स्माइल से स्माइल करते रहिए और हमें प्लीज अपना चेहरा दिखाइए. या नाइस. या सो बिफोर स्टार्टिंग मैं रूबी मैम के बारे में थोड़ा बोलना चाहूंगी. रूबी मैम इज अ सीनियर ब्यूरोक्रेट जो मुंबई में पोस्टेड है. शी इज एन ऑथर, शी इज अ पेंटर, शी इज अ टेडेक्स स्पीकर, शी इज अ लाइफ कोच. She is also a cancer victor and the founder of the non-profit organization Sanjeevani Life Beyond Cancer, a pioneer in comprehensive cancer care. So before starting, I would like to tell you all कि प्रेजेंटेशन के बाद में हम एक क्विज भी खेलने वाले हैं ताकि हमें पता चले कि एक्चुअली आप लोग सो नहीं रहे थे. तो टू मेक इट मोर इंटरैक्टिव, टू मेक इट कि आप लोगों को समझ आए कि हम लोग आप लोगों से क्या शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज आप लोग थोड़ा अटेंटिव हो जाइएगा सेशन के दौरान. अगर बोरिंग लगे तो मुझे बोल दीजिएगा बीच में. सो या So moving forward, I want to tell that Sanjeevani Life Beyond Cancer हम अभी 14 शहरों में काम कर रहे हैं इंडिया के. तो मुंबई, वर्धा, जयपुर, कोलकाता, अहमदाबाद, बेंगलोर, दिल्ली, सूरत, गुवाहाटी, गोवा, पौंडीचेरी, बीकानेर, ऋषिकेश, नागपुर और हम अभी विशाखापट्टनम और तेलंगाना में भी हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है. एंड इनिशियली वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट आवर सेंटर्स मोर. तो हमारे जो प्रोग्राम इंटर्न है उन्होंने बहुत अच्छे से प्रोग्राम्स के बारे में बताया है. स्टिल आई वांट टू गो रफ ब्रीफ ऑन इट. तो हमारा जो फर्स्ट प्रोग्राम है वो है कैन सहयोगी. तो कैन सहयोगी में हम हॉस्पिटल के अंदर हॉस्पिटल को पेशेंट्स को हैंड होल्ड करते हैं और उनको काउंसलिंग देते हैं. वी प्रोवाइड देम हैंड होल्डिंग एंड काउंसलिंग. एक पेशेंट जब हॉस्पिटल के अंदर आता है एंड तब वो एक कैंसर हॉस्पिटल होता है तो उनका मेंटल ट्रॉमा अलग रहता है. भले ही वो जितने भी एडुकेटेड हो या एडुकेटेड ना हो, बट उन लोगों का माइंड में हमेशा एक डर रहता है. तो उसी डर को हम वहां से दूर करते हैं, उनको हम काउंसलिंग करते हैं. एंड द सेकेंड थिंग इज सतोरी. तो एक कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ आपके जो हेल्थ है, जो आपका सेल्स में होता है, वो सिर्फ आपका एक बीमारी जो सिर्फ मेडिसिन से नहीं हटता है. ये एक ऐसी बीमारी है जिसपे आपको कंटिन्यूअसली अपना खाना, आपका सांस लेने का तरीका और आपका थॉट प्रोसेस, हाउ आर यू थिंकिंग, उसके ऊपर हमें कंस्टेंटली काम करना चाहिए. तो हम वैसे एक वेलनेस प्रोवाइड करते हैं जो मेडिकेशन के अलावा. और अभी लॉकडाउन चल रहा है तो हम लोग को ऑनलाइन वेलनेस सेशन करवा रहे हैं. थर्ड इज द कैंसर. तो जब एक इंडिविजुअल को कैंसर होता है तो या तो उसको नौकरी से ये सोच के निकाला जाता है कि शायद हमें भी हो जाएगा, और दूसरा ये है कि ये बंदा तो बहुत दिन हमारे ऑफिस में काम करके प्रोडक्टिविटी नहीं ला पाएगा. सो उस समय वो लोग जाएंगे कहाँ? तब हम उन लोगों को एक ऐसा कोर्स करवाते हैं जिस कोर्स से उन लोगों को जॉब मिलता है या उनके अटेंडेंट को एनजीओ या हॉस्पिटल सेक्टर में जॉब मिलता है एक केयर गिवर के हिसाब से. एंड द फोर्थ प्रोग्राम जो आज हम आप लोगों के साथ कर रहे हैं वो कैन चेतना स्प्रेडिंग प्रिवेंशन. ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड हम लोग 3 एस्पेक्ट्स ऑफ कैंसर अवेयरनेस के बारे में बात करेंगे. द फर्स्ट एस्पेक्ट इज हाउ टू रिड्यूस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कैंसर. हम अपने आप को कैसे रोके कैंसर होने से. हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम बीइंग अ विक्टिम ऑफ कैंसर. दूसरी चीज अर्ली डिटेक्शन. हमें कैसा पता चलेगा कि हमारा शरीर हमें कुछ सिग्नल्स दे रहा है. हाउ वी विल नो दैट आवर बॉडी इज सेंडिंग अस सिग्नल्स एंड समथिंग इज नॉट राइट विद इट. तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. और थर्ड फैक्टर जहाँ पे हम कई लोग बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं व्हाइल वी मीट अ कैंसर पेशेंट इन लाइफ. हमें पता नहीं होता है कि हमें क्या बात करना चाहिए, कौन सा सजेशन देना चाहिए, और हम एज अ रिजल्ट हम कुछ ऐसे बोल देते हैं कि उनके लिए और ज्यादा ट्रॉमेटिक हो जाता है. सो दैट इज मेक अ सब्सटेंशियल डिफरेंस इन अ पर्सन्स लाइफ डायग्नोस्ड विद कैंसर. तो हाउ टू डील विद अ कैंसर पेशेंट आज हम डिस्कस करेंगे. तो मूविंग फॉरवर्ड जब हम कैंसर की बात करते हैं, कैंसर इज द अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ इरेगुलर सेल्स इन द बॉडी. तो हमने क्लास 9-10 स्टैंडर्ड से ही पढ़ा है कि हमारा जो ह्यूमन बॉडी है वो सेल्स से बना होता है, और कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो आपके सेल्स में ही होता है. ओके, सो यू हैव टू बी वेरी कंसर्न दैट कैंसर सेल्स हमारे सबके बॉडी में प्रेजेंट है, इन एवरी ह्यूमन बॉडी. तो क्या होता है, हमारा जो ह्यूमन सेल्स होता है वो ग्रो होता है. तो
तो जो डेड सेल्स होता है वो मर जाता है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं बॉडी में जो इंट्रीगेट करती है वो डेड सेल्स को ग्रो होने में, और वो सेल्स ग्रो होके कैंसर सेल्स में फॉर्म होता है या कहीं पे लंप के हिसाब से वैसा वो फॉर्म होता है। तो बेसिकली दैट इज द कैंसर सेल प्रेजेंट इन आवर बॉडी। तो कैंसर हमें कब होता है, कैसे होता है? ऐसे 3 फैक्टर है जिससे आपको कैंसर हो सकता है। एक तो इंक्रीज ऑफ टॉक्सिसिटी, अगर आपका बॉडी बहुत ज्यादा एसिडिक है, बहुत ज्यादा उस पॉइजनस बन गया है। फॉर एग्जांपल आप अगर गलत सोच रहे हो, जेलस हो, गुस्सा करते हो बहुत ज्यादा, तो क्या करते हो आप? कंटिन्यूअसली एक नेगेटिव हार्मोन बॉडी पे डाल रहे हो। तो वो क्या होता है, वो शरीर ले नहीं पाता है एट सम पॉइंट। क्योंकि कैंसर एक ऐसा बीमारी नहीं है कि आज आप ठीक हो कल आपको कैंसर हो जाएगा, नहीं। उससे पहले आपका शरीर आपको बोलने के लिए ट्राई करेगा कि कहीं पे कुछ गलत है, ठीक है। और अगर आप इग्नोरेंट हो तो शरीर बोलता है और मैं नहीं ले सकता, नाउ आई कैन नॉट टेक मोर, सो दिस इज द रिजल्ट। तो जाके आपको कैंसर होता है। सेकेंड थिंग इज लो इम्यून सिस्टम। अगर आप अच्छे से खा नहीं रहे हो, इफ यू आर नॉट ईटिंग प्रॉपरली ऑन टाइम, किस हिसाब से खा रहे हो, कौन से खाना कौन से टाइम पे खा रहे हो, और क्या इंटेंट के साथ खा रहे हो, अगर आप उस पे फोकस नहीं करोगे तो आपका इम्यून सिस्टम वीक ही रह जाएगा। एंड वन ऑफ द मेजर थिंग अबाउट लो इम्यूनिटी इज नॉट ओनली कैंसर, आपको कई और बीमारी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अभी लेटेस्ट कोविड-19 ले लो, तो हमें सबको पता है कि कोविड सबको हो सकता है, लेकिन अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो वो आपको होके भी सर्दी जुकाम जैसे होके चला जाएगा। बट इफ आपका इम्यून सिस्टम वीक है तो आपको सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ेगा। सो आप देखो कि इम्यून सिस्टम एक कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड द थर्ड इज द अनहेल्दी लाइफस्टाइल। अगर आप बहुत अनहेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हो, टाइम से सोते नहीं हो, एक्सरसाइज नहीं करते हो, सिर्फ जंक फूड खाते रहते हो, तो यू माइट बी वन ऑफ द विक्टिम ऑफ कैंसर। बट apart from that there are also 3 contributing factor जिससे आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो सकता है। हमें पता चल गया कि ये 3 फैक्टर से हमें कैंसर हो सकता है, और ये 3 फैक्टर से हम कैंसर से अपने आप को बचा सकते हैं। फर्स्ट थिंग इज द थॉट प्रोसेस। आप कैसे सोचते हो, कितना पॉजिटिव सोचते हो। यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव इन योर लाइफ। अगर आप नेगेटिव सोचते हो, बहुत गुस्सा करते हो, जेलस हो, गिल्टी हो, सैड हो, डिप्रेस्ड हो, जैसे कि मैंने आपको कहा है कि बॉडी में नेगेटिव इमोशंस रिलीज होता है, नेगेटिव हार्मोन्स रिलीज होता है, और उससे आपका थॉट प्रोसेस में इफेक्ट होता है। ओके, द सेकेंड थिंग इज न्यूट्रिशन। अगर आप अपना खाना अच्छे से नहीं खा रहे हो, अगर टाइम से नहीं खा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अ नॉर्मल डाइट इज आपको सुबह उठ यू हैव टू स्टार्ट योर डे विद अ वार्म ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। ठंडा और गर्म पानी को जो मिक्स करके होता है, वो वार्म वाटर से आपको आपका डे स्टार्ट करना है। देन अलोंग विथ योर ब्रेकफास्ट आपको फ्रूट्स लेना ही है, जो रॉ। आप जितने कच्चे खाओगे आपका शरीर उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो फ्रूट्स आप मॉर्निंग में वाटरमेलन, पपाया, एप्पल, मैंगोज, आप वैसे फ्रूट्स ले सकते हो, ठीक है। यू कैन हैव फ्रूट्स इन योर ब्रेकफास्ट। फिर जब लंच का टाइम आता है, व्हेन इट इज डे आफ्टरनून, तो बिफोर हैविंग योर लंच आप सैलेड ले सकते हो। क्यूकम्बर ले लो, खीरा ले लो, आप कैरेट्स ले लो, बीट रूट ले लो, सैलेड पत्ता जो लेट्यूस लीफ है आप वो खा सकते हो। सो ईट दैट। और सब्जी में दिन में जितना हो सके ग्रीन वेजिटेबल्स खाने के लिए ट्राई करो। अच्छा नहीं लगता है बट इफ यू मेक इट प्रॉपरली आपको अच्छा लगेगा। तो ग्रीन वेजिटेबल जितना हो सके खाने के लिए ट्राई कीजिए, और दिन का 4 बजे तक जितना पानी हो सके पीजिए टिल 4 ओ क्लॉक। आफ्टर 4 ओ क्लॉक जब प्यास लगे तब पानी पी लेना। ओके, देन यू हैव टू कीप दिस इन माइंड कि रात के 8 बजे तक आपको आपका डिनर कंप्लीट करना है, 8 to 8:30 लेटेस्ट, क्योंकि उसके बाद 3 घंटे के बाद आपको सोना है। यू हैव टू मेंटेन दिस एंड यू हैव टू वर्क। तो एक्चुअल टाइम है कि आपको 10 बजे या 9:30 बजे आपको सो जाना चाहिए। बट वी आर यूथ, तो हमें नेटफ्लिक्स तो देखना ही है, थोड़ा यूट्यूब सीरियल वगैरह तो देखना ही है। सो यू कैन ऑब्वियसली डू दैट, बट 11 बजे के साथ साथ आपको आपके सोशल मीडिया हैंडल्स बंद करके आपको सोना है। ओके, द थर्ड थिंग इज द ब्रीदिंग पैटर्न। आप कैसे सांस ले रहे हो। तो हम जब सांस लेते हैं हम बस अपने चेस्ट तक सांस लेते हैं, तो व्हाट हैपेंस, हमारे जो ऑक्सीजन है सिर्फ चेस्ट तक जाता है, लेकिन जो एब्डोमेन तक जो हमारा ऑर्गन है उसको तो ऑक्सीजन मिलता ही नहीं है।
एंड ऑक्सीजन इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर लाइक एलिमेंट, क्योंकि वहां पे एल्कलाइन है. Alkaline is one of the important element which will help to fight cancer in your body. तो आप जितना सांस लोगे आपका बॉडी उतना कैंसर फ्री होगा. और आपको ये ध्यान रखना है कि सुबह उठ के जो पहला थॉट आपका माइंड में होना चाहिए, दैट इज आई एम थैंकफुल दैट आई एम अलाइव टुडे. सेकंड थिंग इज दिस इज माय बॉडी एंड आई हैव टू थिंक अबाउट. इंस्टेड ऑफ हम क्या करते हैं सुबह उठ के, किसी का व्हाट्सएप का मैसेज आया क्या, फेसबुक में किसी ने कमेंट कर दिया क्या, एक बार देख लो. द फोन विल डू. बट अभी द सेकंड थिंग यू हैव टू डू इज आपको सांस लेना है, लंबी लंबी सांस लेना है. और सांस लेते वक्त ये हमेशा याद रखना है कि आप जब सांस लेते हो आपका पेट बाहर होना चाहिए, और जब आप सांस छोड़ते हो तो आपका पेट अंदर होना चाहिए. बट हम लोग जब सांस लेते क्या करते, पेट अंदर कर देते, निकालने के टाइम पे बाहर कर देते. दैट इज द रॉन्ग प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग. तो आपको ब्रीदिंग पे फोकस करना है. सुबह आधा घंटा तक या 20 मिनट्स तक जितना हो सके लंबी सांस आपको लेना है. उसके बाद इवनिंग जब आप फ्री हो, बैठे हो, कुछ कर नहीं रहे हो, तो यू कैन टेक डीप ब्रेथ्स. ओके. तो हमारे जो फाउंडर है रूबी आलूवालिया मैम, शी इज अ कैंसर विक्टर हरसेल्फ. तो उनको इन चीजों का गहराई बहुत अच्छे से है, वैल्यू है उनका. तो उन्होंने आप लोगों के लिए खास 3 वीडियोस बनाया है बेस्ड ऑन आवर इम्यून सिस्टम. तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि आप लोग एक बार वीडियो देख लें. ब्रीदिंग, जब आप सांस ले रहे हैं, भरपूर सांस पहली बात ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, और जिस तरह से आप बैठ के खड़े होके सांस ले रहे हैं, उस टाइम शरीर इस अवस्था में है क्या कि जो आपने सांस लिया वो पूरा ब्रीदिंग, जब आप सांस ले रहे हैं, भरपूर सांस पहली बात ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, और जिस तरह से आप बैठ के खड़े होके सांस ले रहे हैं, उस टाइम शरीर इस अवस्था में है क्या कि जो आपने सांस लिया वो पूरा का पूरा अंदर गया या नहीं गया. जैसे हम पाइप में पानी डालते हैं, तो पाइप में आप पानी कितने भी प्रेशर से डालिए, कितना भी ज़्यादा डालिए, जब तक वो पाइप मुड़ा तुड़ा रहेगा वो पानी उस पाइप के थ्रू नहीं जा सकता. इसी तरह से सांस लेने के टाइम हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए. अगर आप बैठ के कर सकते हैं तो बैठ के आपको सांस किस तरह से भरपूर सांस लेना है, पूरे टाइम, कायदे से पूरे टाइम लेना है. अगर पूरे टाइम नहीं आपका ध्यान सांस पे है तो कम से कम 1 घंटे में आंखें बंद करके 20 से 30 सांस आपको पूरी अवेयरनेस के साथ लेनी है. इन अ नॉर्मल वे आप 2-3 सांस के बाद आप देखेंगे आपकी सांस खुद से लंबी होती चली जाती है. तो जब कैंसर का ट्रीटमेंट आपका चल रहा है तो उस टाइम पे ये पूरा सांस के ऊपर फोकस कैसे करना है, क्यों करना है, और किसी भी पोजीशन में रहते हुए कैसे करना है, ये आपको यहाँ पे योगा और प्राणायाम के सेशंस में वेलनेस सेंटर में हम लोग पेशेंट्स को सिखाते हैं. हम लोग जो अपना न्यूट्रिशन यहाँ पे सजेस्ट करते हैं पेशेंट्स को, which is basically based on those experiments which have been done with the cancer patients and led to some beautiful positive results. So number 1 कि हम इस समय पे अपना जो दूध का कंजम्पशन है उसको धीमे धीमे कम करके बिल्कुल बंद कर देंगे, क्योंकि आजकल जो दूध मिलता है उसके अंदर केमिकल्स बहुत ज़्यादा रहते हैं. आजकल जो दूध मिलता है, जो वो जिस तरह से निकाला जाता है, एक जान, एक शरीर के अंदर से निकाला जाता है, तो जिस तरह से निकाला जाता है उसका बहुत इम्पैक्ट होता है ऑन द क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ दैट फूड. तो जब हम अपने घर में गाय पालते थे और गाय को खुद से खाना खिलाते थे और
उसके बछड़े को दूध देने के बाद हम उसका थोड़ा सा दूध अपने कंजम्पशन के लिए लेते थे, वो एक चीज होती थी। आज हम गाय पालते हैं सिर्फ इसलिए कि वो कम से कम 40 किलो दूध दे एक दिन में, और उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको हार्मोनल इंजेक्शन देते हैं, क्योंकि कोई गाय ऐसी नहीं है जो साल भर दूध देती रहे। तो हार्मोनल इंजेक्शन देने के बाद और जिस तरह से मशीन से दूध निकाला जाता है, उसके अंदर टॉक्सिन्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और ये वो टाइम है हमारी केयर करने का बॉडी को, कि जिसमें ना सिर्फ कि जो ऑलरेडी टॉक्सिन्स हैं उनको हमें निकालना है, बट हमें एडिशनल टॉक्सिन्स तो बिल्कुल लेने ही नहीं है। तो इस समय पे कोशिश करेंगे कि हम दूध का जो कंजम्पशन है उसको धीमे धीमे बिल्कुल बंद कर देंगे। अगर आप कल से बंद कर सकते हैं तो कल से बंद कर देंगे। दूसरी चीज़ चीनी। चीनी में कोई बुराई नहीं है, मिठास में कोई बुराई नहीं है, बट चीनी जिस तरह से रिफाइन करके बनाई जाती है उसके अंदर इतने केमिकल्स ऐड हो जाते हैं दैट वी नीड टू अवॉइड टेकिंग शुगर। तो आप गुड़ लीजिए, अगर आपको मीठा खाना है तो आप गुड़ लीजिए, लेकिन चीनी का कंजम्पशन बंद करिए। तीसरी चीज़ मैदा और गेहूं जिसके अंदर ग्लूटेन बहुत ज़्यादा आता है, उसका कंजम्पशन बंद करिए, क्योंकि वो अंदर जाके आपके सिस्टम में बिल्कुल अटक जाता है और बाकी जो खाना आप खा रहे हैं उसको प्रोसेस होने में दिक्कत प्रोड्यूस करता है। तो इन तीन चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करिए। हम लोग जब भी पूजा घर में जाते हैं, पूजा की जगह जाते हैं, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, तो हमें वहाँ पे जाके बहुत एक शांति महसूस होती है, बहुत एक खुशी महसूस होती है। तो आप लोगों ने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? तो मैंने इसको थोड़ा सोचने और समझने की कोशिश की। मुझे ये समझ में आया कि जब हम पूजा के लिए जाते हैं तो हम दो भावों से जाते हैं। एक तो सरेंडर का भाव, जिसमें हम मांगने जाते हैं, हम भगवान से मांगने जाते हैं, हमारी जिंदगी में ऐसा हो जाए, मुझे ये मिल जाए, मेरे बच्चे का ऐसा हो जाए, मेरी जो परिस्थिति है वो इस तरह से चेंज हो जाए। तो जब हम मांग रहे होते हैं तो हम एक समर्पण और एक सरेंडर के भाव में होते हैं। और ये जो सरेंडर का भाव है, इसमें बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी हमारे अंदर और हमारे इर्द गिर्द जनरेट होती है। और ये पॉजिटिविटी हम पूजा घर में छोड़ के बाहर आ जाते हैं और हम अपने संसार के कामों में लग जाते हैं। दूसरा भाव जिसके साथ हम पूजा घर में जाते हैं वो होता है कृतज्ञता का, धन्यवाद का, ग्रैटिट्यूड का, कि भगवान थैंक यू सो मच, आपने मेरा ये काम कितना अच्छा कर दिया। भगवान थैंक यू सो मच कि मेरे पास इतना खूबसूरत परिवार है। भगवान थैंक यू सो मच कि मेरी लाइफ इतनी सुंदर है। भगवान थैंक यू सो मच कि मैंने वो जो आपसे मांगा था आपने मुझे दे दिया। तो जब हम कृतज्ञता के भाव में रहते हैं, ग्रैटिट्यूड के भाव में रहते हैं, धन्यवाद के भाव में रहते हैं, उस समय फिर से वापस बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी हम जनरेट करते हैं। ये जो दो इमोशंस है, ये जो दो भाव है, सरेंडर का मतलब समर्पण का, या ग्रैटिट्यूड का मतलब कृतज्ञता का, इन दोनों ही भावों में किसी भी नेगेटिव इमोशन की कोई जगह नहीं रहती। तो हम रोजाना इतने सारे लोग पूजा घर में जाते हैं और अपनी पॉजिटिविटी वहां पे जनरेट करते हैं और वहां पे छोड़ के बाहर आ जाते हैं। और ये जो पॉजिटिविटी है दिन ब दिन वहां पे इकट्ठी हो जाती है
और ये पॉजिटिविटी का पूरा एक घर बन जाता है। जितना पुरानी ये जगह होगी उतनी ज्यादा पॉजिटिविटी वहां पे होगी, क्योंकि उतने ही ज्यादा लोग समर्पण और कृतज्ञता के भाव से वहां पे जा चुके हैं। तो अगर इतनी पॉजिटिविटी इन दो भावों से होती है तो सिर्फ मंदिर के अंदर ही क्यों, हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा समय अगर इस भाव में गुजार सकें तो हमारी जिंदगी थोड़ी ज्यादा सुंदर हो जाएगी। तो हमने ये 3 वीडियो में देखा है कि हाउ वो 3 फैक्टर्स अपना थॉट प्रोसेस, न्यूट्रिशन और ब्रीदिंग कैन बी 3 इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स फॉर आवर इम्यून सिस्टम। ओके, तो अभी हम डिस्कस करेंगे अर्ली डायग्नोसिस के ऊपर, जिसको हमने कॉशन के टर्म से रखा है, क्योंकि जो कैंसर का जो सिम्टम्स है वो बहुत कॉमन सिम्टम्स है। ठीक है, तो फर्स्ट आपका सिम्टम है कि चेंज इन बावेल और ब्लॉडर हैबिट। तो अगर आप जब वॉशरूम जा रहे हो, आप अगर नोटिस कर रहे हो कि आपके बावेल मूवमेंट में कुछ चेंजेस है, अगर बहुत ज्यादा पेन हो रहा है या वहां से खून निकल रहा है, इफ इट इज ब्लीडिंग या आपका कलर चेंज हो रहा है, तो यू शुड सीक हेल्प फ्रॉम डॉक्टर। ठीक है, दूसरा है कि अ सोर दैट डज नॉट हील। तो सोर जो होता है हमारा, वो मुंह के अंदर है, जो बहुत ज्यादा गुटखा लेते हैं, बहुत ज्यादा टोबैको सब्सटेंस यूज करते हैं, या कभी हमारे शरीर में विटामिन की कमी के वजह से भी हमारे सोर होता है मुंह में। तो सोर एक ऐसा है कि वो आपका 1 सप्ताह या 10 दिन में ठीक हो जाता है। लेकिन अगर वो ठीक नहीं हो रहा है और आप देख रहे हो कि दिन ब दिन उसका कलर चेंज हो रहा है, व्हाइट कलर का हो रहा है या बहुत ज्यादा रेड हो रहा है या ग्रीनिश या येलोइश और ब्लैक टाइप का हो गया है, तो इसका मतलब ये है कि यू शुड इमीडिएटली सीक हेल्प। ओके, तीसरा चीज है अनयूजुअल ब्लीडिंग और डिस्चार्ज। अभी ब्लीडिंग अपार्ट फ्रॉम द मेंस्ट्रुएशन साइकिल ऑफ अ फीमेल, ब्लीडिंग आपका अगर कहीं से हो रहा है, आप अगर वॉशरूम जा रहे हो, टॉयलेट में अगर आपका जा रहा है, अगर आपका यूरिनेशन में ब्लीडिंग हो रहा है, अगर आपका नाक से, आपका दांत से या आपके ब्रेस्ट के निप्पल का डिस्चार्ज में अगर आपका ब्लीडिंग हो रहा है, तो ये कुछ वार्निंग साइंस है जो बॉडी आपको दे रहा है। ठीक है, then the next thing is thickening or lump in the breast or elsewhere। तो lump आपका कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, पहली चीज तो वो, दूसरा ये कि lump आपका पेनफुल नहीं होता है ज्यादातर। तो आप एक सिंपल एक्सरसाइज कर सकते हो टू ऑब्जर्व कि लंप कैसे होता है, या कैसे हम फील करें, हम हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे बॉडी में लंप है। तो आप एक सिंपल एक्सरसाइज कर सकते हो। आप जब वॉशरूम जाते हो, जब आप नहाते हो, आपके बॉडी पे आप साबुन या सोप अप्लाई करते हो, तो क्या होता है, आपका बॉडी बहुत ज्यादा स्लिपरी रहता है। तो आप क्या कर सकते हो, ये 3 फिंगर का यूज करके आप ऑब्जर्व कर सकते हो। आपका ब्रेस्ट में भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो, आपका हाथ में, आपका बैक साइड पे आप ऐसे छू के उसको ऑब्जर्व कर सकते हो कि कहीं कोई लंप है क्या। अगर लंप है तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि लंप 2 तरीके का होता है। एक होता है कैंसरस, जिसको हम मेलिग्नेंट ट्यूमर बोलते हैं। दूसरा होता है आपका बीनाइन। तो मेलिग्नेंट का जो ट्यूमर होता है वो कैंसरस होता है, और आप उसको 3 ट्रीटमेंट्स ऑफ कैंसर, रेडियोथेरेपी, केमोथेरेपी एंड सर्जरी से उसको ठीक कर सकते हो। लेकिन अगर आप उसको इग्नोर करते हो, तो हमें पता है कि कैंसर सेल में होता है, तो वो स्प्रेड होता है बॉडी। तो एज सुन एज यू डिटेक्ट और आपको लगे कि कुछ गलत है, तो आप इमीडिएटली वो रिमूव करने के लिए चला जाए। और एक है बीनाइन ट्यूमर जो कैंसरस नहीं होता है, लेकिन वो विद टाइम्स वो भी बड़ा होता है, और अगर आप उसको इग्नोर करते हो और अगर आप सर्जरी से उसको निकालते नहीं हो, तो इन फ्यूचर वो जाके कैंसरस हो सकता है। ठीक है, देन द नेक्स्ट थिंग इज इंडाइजेशन और डिफिकल्टी इन swallowing। तो इंडाइजेशन बहुत नेचुरल है, कभी अगर हमने कुछ गलत खा लिया तो हमें इंडाइजेशन होता है। ठीक है, लेकिन आप अगर देख रहे हो कि आपका बार बार इंडाइजेशन हो रहा है, आप खाना खाते हो और इमीडिएटली आपका अगर इंडाइजेशन हो रहा है, तो आपको ये याद रखना है कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ गलत चल रहा है। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट।
डिफिकल्टी इन swallowing, तो खाना खाना, पानी पीना और सांस लेना आर द स्मूथ थिंग एंड नेचुरल थिंग इन आवर बॉडी। तो अगर आप खाना खाते समय अगर आपके इसोफेगस, आपका जो फूड पाइप है, उस पे अगर बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, यू आर अनएबल टू swallow इट, तो इसका मतलब ये है कि कहीं पे आपका कुछ सिम्टम है ओरल कैंसर का। सो यू शुड इमीडिएटली सीक हेल्प ऑफ डॉक्टर। ठीक है। जो सेकेंड लास्ट थिंग है दैट इज ऑब्वियस चेंज इन वाटर मोल। तो मोल हमारे सबके शरीर में प्रेजेंट है, जो तिल होता है। तो हम जब छोटे रहते हैं, व्हेन वी आर स्मॉल, तो वो भी छोटा रहता है, और जब हम बड़ा होते हैं तो उसके इलास्टिसिटी की वजह से वो भी थोड़ा बड़ा होता है। लेकिन आप अगर ऑब्जर्व कर रहे हो कि आपका मोल हद से ज्यादा बढ़ रहा है और बहुत ज्यादा पेनफुल हो रहा है, इफ इट इज वेरी पेनफुल, एंड वहां से अगर कुछ डिस्चार्ज हो रहा है, कुछ फ्लूइड, कुछ लिक्विड ब्लड, तो यू शुड कीप दिस इन माइंड कि शायद वहां पे कुछ इश्यूज है। ठीक है। फिर नेगिंग कफ और होर्सनेस। तो जो नेगिंग कफ, तो कफ वेदर चेंज की वजह से सबको कफ हो सकता है, दैट इज नेचुरल। वंस इन अ 6 months यू मे हैव यू नो कफ। लेकिन अगर आपको बार बार कफ हो रहा है, ठीक है, अगर आपको बार बार अगर कफ हो रहा है और आप मेडिसिन ले रहे हो, अगर वो ठीक नहीं हो रहा है, ठीक है, तो दैट माइट बी वन ऑफ द सिम्टम ऑफ ओरल कैंसर। तो आपका गला बैठा है, 6 महीना हो गया, मेडिसिन ले रहे हो, ठीक नहीं हो रहा है, तो इमीडिएटली गो एंड सीक हेल्प ऑफ अ प्रॉपर डॉक्टर। ओके, तो हमने अभी अर्ली सिम्टम्स और डायग्नोसिस के बारे में बात कर लिया। नाउ वी विल टॉक अबाउट द रिस्क फैक्टर। तो हम जब रिस्क फैक्टर की बात करते हैं, तो पहली चीज कैंसर बोलते ही हमारा माइंड पे आता है गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, दारू, अभी जो वीड चल रहा है वो। ठीक है। सो दीज आर वन ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर ऑफ ओरल एंड योर लंग कैंसर। ठीक है। तो जो लोग सिगरेट पीते हैं, वो उनका तो लंग कैंसर का चांसेस 90% होता है। लेकिन जो लोग अल्कोहल लेते हैं, उन लोगों का बहुत ज्यादा एक फॉल्स कंसेप्ट है कि अल्कोहल लेने से कैंसर नहीं होता है। बट आपको ये याद रखना है कि हम लिवर में भी कैंसर होता है। तो अगर आप बहुत ज्यादा अल्कोहल यूजर हो, तो इन फ्यूचर आपको लिवर कैंसर हो सकता है। ठीक है। तो जब हम रोज रोज हम लोग जब पेशेंट के साथ बातें करते हैं, व्हेन वी इंटरेक्ट विद पेशेंट, तो हम उनको पूछते हैं कि ऐसा कौन सा रीजन है आपको ओरल कैंसर हुआ है या आपको लंग कैंसर हुआ है। तो उनका एक ही था कि मैं जवानी में बहुत ज्यादा सिगरेट पीता था, अपने दोस्तों के साथ बहुत ज्यादा दारू पीता था। सो दीज आर द कॉमन रीजंस दे विल गिव यू। तो दे आप लोग 20 साल या 30 साल की उम्र में लोगे, बट कैंसर विल हैपन एट द लेटर स्टेज, जब आप 40, 50, 60 इयर्स के होंगे। तो ऑलरेडी आप एक डिपेंडेंट पर्सन रहोगे, एंड ऊपर से आपका डिजीज आएगा, तो इट विल क्रिएट मोर हैवॉक इन योर लाइफ। तो आप क्या कर सकते हो? अगर मैं अब एडिक्ट हूँ, मैं नहीं छोड़ सकता, तो व्हाट कैन आई डू, राइट? क्योंकि जब आप सिगरेट लेते हो, जब आप गुटखा खाना स्टार्ट करते हो, इट इज ऑन योर हैंड कि मुझे खाना है या नहीं खाना है। बट मुझे जब छोड़ने का मन करे, मैं कभी नहीं छोड़ सकती, बिकॉज माई बॉडी विल नॉट अलाउ दैट। तो मुझे लगातार खाने का मन करेगा, तो मैं कैसे हैंडल करूँ? तो आप एक सिंपल एक्सरसाइज कर सकते हो। जो जिंजर है, अदरक, तो आप उसको पीस कर सकते हो छोटे छोटे पीस में, टुकड़ों में। उसको आप काला नमक से, ब्लैक सॉल्ट से आप उसको मिक्स करके आप एक प्लेट में धूप में सुखा दो। 3 दिन के लिए आपने धूप पे सुखा दिया, उसके बाद उसको कंटेनर में लेके रखो। जब भी आपको सिगरेट पीने का या गुटखा लेने का फीलिंग हो कि मुझे ये लेना है, तो इमीडिएटली आप वो जिंजर पीस आपके मुंह के अंदर डाल दो। तो पहला तो ये कि उसका टेस्ट से आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। दूसरा कि आपका वो जो टेस्ट बड, जो क्रेविंग आ रहा है, उसको वो मार देगा। और जो कॉमन गरम मसाला हमें हमेशा सब घर में मिलता है, वो है लौंग, इलायची, दालचीनी। वो भी आप साथ में रखो, ताकि कभी भी अगर आपको मन करे कि आप बहुत उदास हो, बहुत स्ट्रेस्ड हो, आपको सिगरेट चाहिए या गुटखा चाहिए, तो इमीडिएटली वो खा लो। तो दैट विल हेल्प यू प्रिवेंट दिस थिंग्स। ओके। तो दूसरी बात है स्ट्रेस। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हो, क्योंकि अभी कोरोना चल रहा है, सब घर पे है, हम बाहर नहीं जा पा रहे, तो हम कैसे स्ट्रेस को मैनेज करें? हम बहुत गुस्सा करते हैं अगर, तो हमें पहला मोटो तो ये सोचना है कि हम कभी नेगेटिव हॉर्मोन्स को हमारे शरीर में पलने देंगे ही नहीं। ठीक है। तो हम कैसे डील करेंगे उसके साथ? पहले अगर आप बहुत गुस्सा करते हो, सो व्हाट यू कैन डू इज आप उल्टी गिनती, बैकवर्ड काउंटिंग कर सकते हो।
100, 99, 98, 97, 96, आपको जब भी गुस्सा है आप बैकवर्ड काउंटिंग करो। तो क्या होता है, आपका माइंड उस पे डाइवर्ट हो जाता है और आपका गुस्सा शांत हो जाता है। दूसरा, घर के एक कॉर्नर पे आप एक वॉल बना लो या बैक साइड पे बना लो, एक नेल और एक हैमर रखो हमेशा घर में। तो कभी भी अगर गुस्सा है, वो नेल को वॉल पे मारो और वो नेल को घुसा दो। जैसे ही वो नेल वॉल पे घुसेगा, आपका गुस्सा भी उस नेल के साथ चला जाएगा और आप एक मेमोरी भी रख पाओगे कि चलो आज मैं अपने फ्रेंड के ऊपर गुस्सा था तो ये नेल है, आज मैं अपने बॉस के ऊपर गुस्सा था तो ये नेल है। सो दीज आर द थिंग्स यू कैन डू। एंड द थर्ड थिंग इज, अगर आप बहुत डिप्रेस्ड हो, बहुत उदास हो, किसी को बोल नहीं पा रहे हो, तो मेंटेन अ जर्नल, एक डायरी लिखो अपना। जरूरी नहीं है कि वो बहुत सुंदर हैंडराइटिंग या बहुत फैंसी वर्ड्स में होना पड़ेगा, ताकि सिर्फ आपका इमोशन रिलीज हो। क्योंकि हमें शरीर में नेगेटिव हार्मोन को पलने देना नहीं है और हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना है। एवरी प्रॉब्लम हैज अ सोल्यूशन, वैसे सोचना है, ठीक है। द थर्ड थिंग इज ओबेसिटी एंड बीइंग ओवरवेट। तो हर शरीर, हर इंडिविजुअल का एक बॉडी मास इंडेक्स होता है, अ हेल्दी वेट। तो क्या होता है बीएमआई का मतलब, तो मैं अभी फॉर एग्जांपल इफ आई एम 25 इयर्स, तो मेरा हाइट अगर 5 फीट है, तो मेरा हेल्दी जो वेट है वो 55 टू 60 होना है। अगर उससे ज्यादा है तो इसका मतलब मैं ओवरवेट हूँ, मैं ओबीज हूँ। तो मैं क्या कर रही हूँ, बीमारी को वेलकम कर रही हूँ, अपने बॉडी में उनको जगह दे रही हूँ। सो वेट मेंटेन या हेल्दी रहना का मतलब ये नहीं है कि आप पतले हो गए हो, आप 45 केजी के हो गए हो, 50 केजी के हो गए हो, नहीं। आपके हाइट, आपके एज के हिसाब से आपको एक हेल्दी वेट मेंटेन करना है। द नेक्स्ट थिंग इज इनएडिक्वेट फिजिकल एक्टिविटी। तो इनएडिक्वेट फिजिकल एक्टिविटी मतलब आपको सब एक्सरसाइज करना है रोज। एक्सरसाइज डजंट मीन कि आपको जिम पे जाके सिर्फ डंबल उठाना है, वैसे कुछ प्रॉब्लम वो नहीं है। कई कई लोग हैं जिनको जिम जाना पसंद नहीं है, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन डू सिंपल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। आप अपने गर्दन को थोड़ा लाइट हिला सकते हो, आपके हाथ को, आपके लेग को, आपके बॉडी को थोड़ा मूवमेंट, ताकि अच्छा से ऑक्सीजन फ्लो हो, ताकि अच्छा से ब्लड फ्लो हो विदाउट एनी ब्लॉकेज। तो वो करना है, ओके। देन लैक ऑफ स्लीप। तो लैक ऑफ स्लीप इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर। हमें सबको पता है कि हमें सोना है 8 घंटा। तो 8 घंटा का मतलब ये नहीं कि 3 बजे तक मैं नेटफ्लिक्स देख लूंगा, पबजी खेल लूंगा, उसके बाद 1 बजे तक सो जाऊंगा, नो। 8 आवर्स मीन आपको 11, लेटेस्ट बाय 11 बजे सोना है और 6-7 बजे उठना है, ताकि आप मॉर्निंग के जो सनराइज है वो भी अपने बॉडी में ले सको, ठीक है। सो हियर इज अ स्मॉल वीडियो ऑन स्लीप बाय आवर फाउंडर। तो मैं चाहूंगी वो आप देखो एक बार। तो हमें देखना और समझना ये है कि जब हम सुबह में उठते हैं तो हम बड़े परेशान से उठते हैं, टेंशन में उठते हैं, उठने का मन नहीं हो रहा होता, शरीर थका हुआ होता है सोने के बावजूद। सुबह में जब तक 2 ग्लास चाय या कॉफ़ी नहीं पी लें तब तक हमारा दिन शुरू नहीं होता। अगर एज अ पैटर्न आप सुबह में इस तरह से उठ रहे हैं तो आपको बहुत ज़रूरत है ये समझें कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो अगर हम सुबह में इस तरह थके हुए से उठते हैं तो इसका मतलब सीधा यही हुआ कि हम ठीक से सोए नहीं। अगर हम सोए नहीं तो उसके क्या कारण हैं? 3 कारण हैं बहुत इम्पोर्टेंट। या तो हम ठीक आ रहे हैं सोने के पहले, या हमने कोई टेंशन अपने दिमाग में पाली हुई है, कोई स्ट्रेस पाला हुआ है जिसकी वजह से हम ठीक से सो नहीं पा रहे, या हमारी बॉडी क्लॉक किसी वजह से डिस्टर्ब हो गई है। जैसे हम बाहर के देशों में जाते हैं उस टाइम जेट लैग हो जाता है, तो टाइम, बॉडी का जो स्केड्यूल है वो बिगड़ जाता है। तो अगर मैं ये बोलूँ कि नींद बहुत ज़रूरी है और कल से आप ठीक से सोना शुरू कर दीजिए, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ये समझना कि ठीक है, अगर मैं ठीक खाना नहीं खा रहा हूँ तो मुझे क्या चेंज करना है, अपनी फूड हैबिट में क्या चेंज करना है। सबसे पहले कम से कम सोने के 3 घंटा पहले आप अपना खाना खाइए। खाना हल्का होना चाहिए, उस बहुत तेल वाला खाना या बहुत कार्ब्स वाला खाना रात में बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। दूसरा, आजकल
हम सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं, ये देखिए कि कम से कम सोने के 1 घंटा पहले आपका लैपटॉप बंद हो गया और आपके सोशल मीडिया के हैंडल्स आपने बंद कर दिए। तो हमने ये देखा है कि हाउ स्लीप इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर फॉर आवर इम्यून सिस्टम। तो अब हम डिस्कस करेंगे टॉप 5 कैंसर्स के ऊपर जो इंडियन पॉपुलेशन को ज्यादा इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट इज द ब्रेस्ट कैंसर, जो मेल या फीमेल में बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, मतलब आप मेल में भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ब्रेस्ट बोलने से सिर्फ फीमेल को ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम लोग, नहीं। ओके, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन फीमेल है। ओके, तो दैट इज द थिंग। और मैंने आपको बताया है कि आप कैसे ब्रेस्ट कैंसर के लिए आप कैसे सेल्फ स्क्रीनिंग कर सकते हो। आप अपने 3 उंगली से जब आप नहा रहे हो तो आप छू के देखो। तो आप जब छुओगे आपको ये नोटिस होगा कि वहां पे थोड़ा ऑलरेडी लम्प टाइप होता है, राउंड राउंड। लेकिन जो ट्यूमर होता है वो थोड़ा हार्ड होता है। ठीक है, वो पहले स्टेज पे तो वो बिल्कुल पेनफुल नहीं होता है। सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड और आपको ऑब्जर्व करना है वंस इन अ 3 मंथ्स। ठीक है। देन इज द ओरल कैंसर। ओरल कैंसर भी मेल या फीमेल दोनों में होता है, लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये मेल में ज्यादा होता है, क्योंकि एंड इट इज अ लीडिंग फैक्टर ऑफ डेथ इन मेल बिकॉज men are more prone to consume things like tobacco, alcohol, गुटखा, बीड़ी, पान मसाला एंड ऑल। तो इसीलिए उनका चांसेस ज्यादा रहता है। थर्ड इज द सर्विकल कैंसर। सर्विकल कैंसर महिलाओं में बहुत ज्यादा होता है बिकॉज पहले तो ये कि अगर आप बिफोर द ग्रोइंग एज, तो क्या होता है 18 से 25-30 हम लोगों का ग्रोइंग पीरियड रहता है, हमारा शरीर जब फुल्ली ग्रो होता है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आप 13 या 14 ईयर्स में ही सेक्सुअल एक्टिविटी में आप इंडल्ज हो गए हो, तो और आपका शादी हो गया है और बाय द एज ऑफ 20-21 आपका ऑलरेडी 2-3 बच्चे हो गए हैं। तो पहले वैसा होता था, तो हमारा जो इंटरनल वो है वो बहुत ज्यादा डेलिकेट है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज्यादा टेंडर है। तो अगर उस पे हम बिफोर ग्रोइंग अगर ज्यादा प्रेशर डाल रहे तो वो इन्फेक्शन होने का चांस रहता है उस पे। तो इन द लेटर स्टेज ऑफ लाइफ आपको सर्विकल कैंसर हो सकता है। या अगर आप अपने प्राइवेट पार्ट्स वॉश नहीं करते हो, अगर हाइजीन मेंटेन नहीं करते हो, तो पहले आपका इचिंग होगा, कुछ खुजली वगैरह होगा, लेकिन उसके बाद आपको वो सर्विकल कैंसर में फॉर्म हो सकता है। सो इट इज ऑलवेज सजेस्टेड कि आप हमेशा हाइजीन मेंटेन करें रिगार्डिंग योर वजाइना। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज गैस्ट्रिक कैंसर। गैस्ट्रिक कैंसर आजकल बहुत ज्यादा कॉमन है, क्योंकि गैस अभी हम सब में होता है, सबके बॉडी पैकेट फूड से या बाहर के खाना से बहुत ज्यादा वो हो गया है, बहुत ज्यादा एसिडिक हो गया है। तो हम करें भी क्या करें, अगर आउटलेट्स लाइक डोमिनोज, केएफसी, बारबेक्यू नेशन है, इतना अच्छा खाना वो लोग बनाते हैं, तो हाउ कैन वी स्टॉप आवरसेल्फ, राइट? हम कैसे अपने आप को रोके फास्ट फूड नहीं खाने से? तो व्हाट यू कैन डू इज फास्ट फूड खाओ, हम आपको मना नहीं करते, कोई भी आपको मना नहीं करता, लेकिन महीने में एक बार या कभी ओकेजन हो तो खा लो, बट डोंट डू इट ऑन रेगुलर बेसिस। ये हमेशा याद रखो कि हमें 90% अपने पेट के लिए खाना है, फॉर आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, एंड ओनली 10% फॉर आवर टेस्ट। बट हम क्या करते हैं, हम उल्टा करते हैं, हम हमेशा 90% टेस्ट के लिए खा लेते हैं और 10% पेट के लिए खाते हैं, अल्टीमेटली गैस होता है, एसिडिटी होता है। तो व्हाट यू कैन डू इज महीने में एक बार आप जंक फूड खा लो, ठीक है? बाकी दिन आप ये याद रखो कि आपका शरीर को आपको डिटॉक्सिफाई करना है, बिकॉज दिस इज योर बॉडी। तो जितना हो सके रॉ वेजिटेबल फ्रूट्स खाओ, पानी खाओ, सांस लो और बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर दो। तो महीने में अगर एक बार गलत भी खा रहे हो तो बाकी फ्रूट्स और वेजिटेबल आपका वो बैलेंस कर देता है, ठीक है? सो दैट इज ऑलवेज सजेस्टेड। द लास्ट इज द लंग कैंसर। तो आप जब दारू पी रहे हो आप खुद पी रहे हो, लेकिन आप जब सिगरेट ले रहे हो तो आप आपके साथ 10 लोगों को अफेक्ट कर रहे हो। कैसे? पहले तो जब आप सिगरेट लेते हो, जो आप धुआं अंदर लेते हो वो आपके शरीर में अफेक्ट कर रहा है, वो आपके ब्लड में जा रहा है। तो अगर आप फ्यूचर प्लान कर रहे हो कि मुझे इन फ्यूचर शादी करना है, बच्चे करना है, तो क्या हो जाता है एट द एंड आपका ये हो जाएगा कि वो आपके बच्चे में चला जाता है, वो इम्प्योर ब्लड, और बाद में जाके ब्लड कैंसर, जो ल्यूकेमिया या ब्रेन कैंसर हो जाता है बच्चे लोगों को। तो क्या होता है तब हम लोग बहुत रिग्रेट फील करते हैं,
लेकिन तब तक हमें जाना ही नहीं है. सो व्हेन यू लाइट अ सिगरेट ऑलवेज थिंक कि आप अपने फ्यूचर जनरेशन को अफेक्ट कर रहे हो. एंड द नेक्स्ट थिंग इज व्हेन यू आर स्मोकिंग, आप द पीपल स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, आप उनको भी पैसिव स्मोकर बना रहे हो. तो अगर कोई आपके सामने सिगरेट पी रहा है तो मेक श्योर कि आप उनके सामने ना रहो, क्योंकि आप भी एक पैसिव स्मोकर बन रहे हो. तो उसका जितना इफेक्ट हो रहा है आपका डबल इफेक्ट होगा. एंड दूसरा थिंग इज, अगर आप भी पी रहे हो और आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो दूसरों को हार्म मत करो. दैट इज द ओनली थिंग वी सजेस्ट. ओके, द नेक्स्ट थिंग वी विल डिस्कस अबाउट व्हेन वी नो दैट समवन हैज कैंसर. तो हमें अगर पता चला किसी का कैंसर है तो वी हैव टू एक्सपेक्ट द फैक्ट कि उसको फिजिकल चेंजेस होगा एक तो, दूसरा इमोशनल चेंजेस होगा. फिजिकल चेंजेस में उसका मुंह बड़ा हो जाएगा या ब्रेस्ट बड़ा हो जाएगा, उनका बाल चला जाएगा. सो दिस माइट बी द फिजिकल चेंजेस. ओके, बट हमें उनको देख के हंसना या टॉन्ट कभी भी नहीं करना है, बिकॉज वी आर रिलीजिंग नेगेटिव हॉर्मोन्स व्हेन वी आर डूइंग दैट. तो हमें ये भी याद रखना है कि कैंसर सेल्स हमारा बॉडी में भी प्रेजेंट है. तो अगर हम किसी को हंस रहे हैं मतलब हम अपने बॉडी को भी इक्वली अफेक्ट कर रहे हैं. सो डोंट डू दैट. सेकेंड थिंग इज पॉसिबल इमोशनल चेंजेस. जब एक इंसान को कैंसर होता है उनको एक ट्रॉमा होता है. क्यों? क्योंकि एक गलत सोच है कि कैंसर मीन्स डेथ. कैंसर से किसी का डेथ नहीं होता है. और दूसरा डर ये रहता है कि कैंसर होने से शायद किसी को स्प्रेड हो जाएगा. तो ये दो ट्रॉमा होता है. तो ये दो ट्रॉमा आज के अवेयरनेस के बाद आपको चेंज करना है फ्रॉम द सोसाइटी कि कैंसर कम्युनिकेबल नहीं है. ओके, वो अंदर से होता है, सेल्स में होता है, तो वो छूने से या खाने से स्प्रेड नहीं होता है एक साथ. दूसरा, कैंसर का मतलब डेथ नहीं होता है. ओके, अगर आप इग्नोरेंट हो, आपके बॉडी सिग्नल भेज रहा है, आप उसको इग्नोर कर रहे हो, दवाई दवाई खा के लीव इट, ठीक हो जाएगा, ऐसे सोच रहे हो, तो बाद में जाके आपका प्रॉब्लम हो सकता है. ओके, देन यू हैव टू रिस्पेक्ट द प्राइवेसी ऑफ समवन हु हैज कैंसर. तो अगर आपको फील हो रहा है कि किसी का कैंसर है, ठीक है, और आपको वो पर्सन ही इज नॉट कंफर्टेबल इन टेलिंग इट टू अदर्स, तो आपको जाके वो कभी भी किसी को नहीं बताना है. यू हैव टू रिस्पेक्ट द प्राइवेसी. तो यहाँ पे कुछ बेसिक डूज एंड डोंट्स है व्हेन यू नो समवन इज हैविंग कैंसर. तो क्या करें? पहला, लेट देम नो यू केयर. तो केयर का मतलब ये है कि आपको सिंपैथाइज नहीं करना है उनके साथ. ठीक है, आपको बिल्कुल भी उनके साथ सिंपैथाइज नहीं करना है. यू हैव टू tell them that you are there for them and you care for them. Okay, next is respect their decision about how their cancer will be treated even if you disagree. तो अगर आप disagree भी करते हो कि उनका कैंसर, फॉर एग्जांपल आप जानते हो कि अगर हम कैंसर की बात करें तो मुंबई टाटा में या तो चेन्नई अपोलो में सबसे अच्छा हॉस्पिटल है, लेकिन पेशेंट को वहां जाना नहीं है. शी डोंट वांट टू गो और ही डोंट वांट टू गो. तो उस पे आपको थोपना नहीं है. यू हैव टू अलाउ देम, जहां भी वो चाहे उनको वही ट्रीटमेंट करने दो. बिकॉज व्हेन आई टॉक अबाउट नेगेटिव हॉर्मोन्स, अगर एक कैंसर पेशेंट का कैंसर हो रहा है और उसका शरीर में अगर नेगेटिविटी चल रहा है तो वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर भी उनको ट्रीट करेंगे, तब भी वो ठीक नहीं हो पाएंगे. बिकॉज विल पावर मैटर्स, पॉजिटिविटी मैटर्स. ओके, then the next thing is include the person in usual projects, plans and social events. तो कुछ भी हो, सोशल इवेंट हो, प्रोजेक्ट्स हो, कुछ भी हो, उनपे उनको इंक्लूड कीजिए. डोंट एक्सक्लूड अ कैंसर पेशेंट. देन नेक्स्ट थिंग इज लिसन विदाउट ऑलवेज फीलिंग. तो हमेशा आपको ये याद रखना है कि जब एक पेशेंट आपके साथ उसका दर्द शेयर करता है या फीलिंग शेयर करता है, जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा सजेशन देना है, एडवाइस देना है. समटाइम्स आप विदाउट गिविंग एडवाइस ऑल्सो आप उनके बात सुन सकते हो. ठीक है, द नेक्स्ट थिंग इज ऑफर हेल्प इन अ कॉन्क्रीट एंड स्पेसिफिक वेज. तो ये हम कैसे करें? हम ना डॉक्टर है, ना काउंसलर है, ना ही हमारे पास पैसा है, तो हाउ वी विल हेल्प? सो व्हाट यू कैन डू इज, अगर आपके पड़ोसी किसी को कैंसर हुआ है, सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन आप क्या कर सकते हो, उनके बच्चे को घर पे ले आओ, मम्मी को बोलो एक लंच या डिनर प्रिपेयर करके खिला देने के लिए, या उनके घर जाके आप उनको होमवर्क में हेल्प कर देते हो, या स्कूल में जाके ड्रॉप करके आते हो कभी. So these are the small things you can do to deal to manage the stress of the patient. Okay, अभी कई don'ts है which you should always follow. Don't offer advice they don't ask for or be judgmental. तो मैंने जैसे ही आपको बोला है कि आपको कभी एडवाइस नहीं देना है अगर वो लोग नहीं मांग रहे. और अभी आपको ऐसे भी नहीं सोचना है ये तो इतना बीड़ी पीता था, इतना सिगरेट पीता था, हो गया कैंसर, होना ही था. ये काइंड ऑफ स्टेटमेंट कभी मत दीजिए. जो हो गया वो हो गया.
आपको उनको इसमें हेल्प करना चाहिए कि वो कैसे निकले उससे, कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करें, नॉट कि आप उनको कंस्टेंटली पिंग करें. ओके, देन डोंट एज्यूम दे कैन नो लॉन्गर डू द जॉब. आपको कभी भी एज्यूम नहीं करना है कि वो काम नहीं कर पाएगा, बिकॉज अ पेशेंट व्हेन यू आर टॉकिंग, वो आज केमो लेके 2-3 दिन के बाद ऑफिस ज्वाइन कर सकता है, बिकॉज कैंसर इज ऑल अबाउट विल पावर. अगर कैंसर के ऊपर आपको प्रॉपर नॉलेज है एंड यू नो एवरीथिंग अबाउट कैंसर, तो आपको डर लगने वाली चीज ही नहीं है, राइट? अभी हार्ट अटैक हो जाएगा अगर मेजर, तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन कैंसर होने से आप डायरेक्टली नहीं मरोगे. ट्रीटमेंट है, मेडिसिन है, सब कुछ है. उसके ऊपर अगर आप काम करके फॉलो अप करोगे तो आपका डेथ कभी नहीं होगा. ओके, देन बी अफ्रेड टू टॉक अबाउट इलनेस. तो कभी भी अपने बीमारी के बारे में किसी से बोलने के लिए या शेयर करने के लिए डरिए मत. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज व्हेन अ पर्सन इज देयर, जब उनको कैंसर हुआ है, माइट बी दे नीड हेल्प. ठीक है, उनको कैंसर के बारे में उतना पता नहीं होगा जितना आपको पता होगा. सो ट्राई टू हेल्प देम आउट. उन लोगों को समझाओ कि कैंसर होने से लोग नहीं मरते. ओके, उनका ट्रीटमेंट है, मेडिसिन है. कैंसर हुआ है तो क्या, you have to take it out from your body. Okay, then tell the person with cancer, I can imagine how you must feel, because you really can't. तो आप कभी एक कैंसर पेशेंट को मत बोलो कि मुझे समझ आ रहा है आपका पेन, आई कैन फील, बिकॉज वी कैन नॉट फील. अभी किचन में हाथ काट गया या वॉल में हमारा पैर लग के वी गॉट हर्ट इन फिंगर्स, तो वो कॉमन है, सबको होता है. तो इफ वी शेयर, पीपल कैन अंडरस्टैंड. बट अगर कैंसर का जो पेन है, कैंसर का जो जर्नी है, वो डिफरेंट है. So we cannot understand that journey. तो that's why आप कभी जाके उनको ये मत बोलो कि I can feel. Okay, then सबसे important thing is don't go around someone with cancer if you are sick or have a fever or any other sign of infection. तो ये क्या है कि हम जब एक कैंसर पेशेंट के सामने जाते हैं, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हम एक अच्छे इंटेंट के साथ जाते हैं कि मेरा दोस्त को कैंसर हुआ है, उसका मम्मी को हुआ है, तो लेट मी गो एंड सी, उनको अच्छा लगेगा. बट एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है, हम वापस आ रहे हैं लेकिन उनको हम वायरस दे के आ रहे हैं. वी आर गिफ्टिंग देम वायरस ताकि उनको और बीमारी हो जाए, ताकि वो बचे ही ना. सो दैट्स व्हाई व्हेन यू आर सिक, नेवर गो इन फ्रंट ऑफ अ पेशेंट. ओके, और कम्युनिकेबल डिजीज अगर कुछ है तो कभी भी एक पेशेंट के सामने जाना मत. दैट इज ऑलवेज सजेस्टेड. Okay, the next thing is this chart shows that 32.6 million 5 years cancer survivor worldwide. So cancer is not fatal if you work towards early diagnosis and treatment. तो ये चार्ट से it is distinct से that cancer से किसी का डेथ नहीं होता है अगर आप अर्ली स्टेज पे आपका ट्रीटमेंट कर लो. ठीक है, सो हम 8 साल से संजीवनी चल रहा है और हम कैंसर पेशेंट और सर्वाइवर्स के साथ काम करते हैं, एंड वी नो कि कैंसर डज नॉट मीन डेथ. ओके, so this is one of a very important quote. You beat cancer by how you live, why you live, and in which manner you live. तो आप कैंसर को मात तभी दे सकते हो जब आपको आपके लाइफ का एग्जिस्टेंस के बारे में पता चलेगा, जब आपको आप रियलाइज करोगे कि मैं जिंदा हूँ किस लिए. 10,000 लोग मर रहे जगह जगह, बट आई एम अलाइव. तो मैं यहाँ पे दारू, सिगरेट, बीड़ी पीने के लिए तो जिंदा नहीं हूँ, राइट? आई एम हियर टू ब्रिंग अ चेंज. एक चेंज मेकर हूँ मैं, यूथ हूँ मैं, चेंज कर सकता हूँ, लोगों का माइंडसेट बदल सकता हूँ और एक बीमारी से लड़ने में लोगों का हेल्प कर सकता हूँ. बट वो कैसे होगा, पहले मुझे वो फॉलो करना पड़ेगा, तभी वो जाके चेंज होगा, राइट? सो दीज आर द फ्यू थिंग्स यू कैन डू. So this was all about the presentation on cancer, healthy lifestyle, and things which you can do to make your immune system strong. So yes, with this I conclude the PPT. So अगर किसी का सवाल है आप पूछ सकते हो, otherwise Samhita, Ma'am, we have a question. yeah. It's from, wait ma'am, I'll tell it. It's from Dishari Das. She said malignant ट्यूमर था, ऑपरेशन हुआ है मेरा फरवरी 2020 में. So Dishari Das, I would request you to unmute yourself and you can share with ma'am if you have any queries. She is just giving a general thing कि उनको हुआ था, okay, and she is fit and fine now. उनका ट्यूमर हुआ था, उसने उसको निकाल के फेंक दिया है. So that is the thing she might be is wanting to say. This is not a question. Yes ma'am. Yes ma'am. मेरा बोल था.
मेरा हुआ था और आई एम ठीक नाउ। यस, तो यू आर अ लाइव एग्जांपल, तो आप सबको अपना जर्नी शेयर कर सकते हो इफ यू वांट टू डू सो। एक्चुअली मैम मेरा कोलन में जो ट्यूमर हुआ था, वो पेट में बहुत ही दर्द हुआ था। तो मैंने डॉक्टर दिखाया, डॉक्टर ने बोला कुछ नहीं है। मेरा यूएसजी हुआ था तभी भी कुछ नहीं था। जैन 2020 में बहुत ही मतलब एक्सेसिव लेवल में दर्द, मतलब बहुत ही मतलब क्या बोलूं, वो अ, पेन, या बहुत ही कुछ हुआ था। तो देन जब उस टाइम में मैंने यूएसजी किया, शायद मैंने जैन 28 में किया था। तो तभी यूएसजी में मतलब वो रिपोर्ट आया एंड उसके बाद उसी दिन 28 जन में ही मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई एंड 1 फरवरी मेरा ऑपरेशन हुआ एंड राइट नाउ आई एम वेल। यस, सी, इतना पॉजिटिव एक हमें मैसेज मिल रहा है कि कैंसर से डेथ नहीं होता है, एंड वी हैव टू कंटिन्यूअसली वर्क ऑन दैट। एंड दिशारी, आई एम वेरी श्योर कि आप अभी अपने डाइट के ऊपर, आप पानी बहुत ज्यादा पी रहे हो, आप अच्छा से खाना पीना कर रहे हो, तो सब यस ठीक मैम, से कर रहे हो ना। एंड सी, जब एक इंसान को कैंसर एकदम। होता है, दे टोटली चेंज। वो लोग एक उन लोगों को एक नया चांस मिलता है, दे गेट अ सेकंड चांस टू रीलिव, राइट? और हमें तो अभी तक हुआ ही नहीं है, तो क्यों ना हम अभी से अपने बॉडी पे काम करना स्टार्ट कर दें। सो दैट इज वेरी एसेंशियल। थैंक यू सो मच, इट इज एन ऑनर टू हैव यू हियर, दिशारी। सो संहिता, या यू कैन थैंक यू कैरी मैम। फॉरवर्ड विद द क्विज सेशन। Yes, ma'am. Ma'am, I would request you to share the PPT and to Yes. share the full Before screen. before we start, you please share the rules कि सबको chat पे करना पड़ेगा, सबको video Yes. on रखना पड़ेगा। Mainly, Yeah. mainly the thing is that you all have, we are just conducting a quiz, short quiz. 10 to 12 questions will be there, and we'll just see that your typing speed, how much level it's. Ma'am will know better than me. Okay, so let's start. Yeah. Before You have starting, to type fast. yeah, informative session, but we should ask for government agencies banning tobacco products anywhere, anytime. Yeah, this is the fact. This is also many of us want कि हम इसको ban कर दे, हम we want that, but also we have to keep this in mind कि जो taxes का वो है, so government have their own certain plans, तो उसके ऊपर हम कुछ नहीं कहते। बट या द थिंग इज दैट गवर्नमेंट हमें कभी भी नहीं सिखाते कि हमें टोबैको लेना है, हमें सिगरेट खाना है। इंस्टेड गवर्नमेंट इज ट्राइंग देयर बेस्ट कि आप लोग देखो, सिगरेट के पैकेट में मरीजों का फोटो लगा देते ताकि आप देखो व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ द डिजीज। लेकिन हम सिगरेट लेते तो है लेकिन पैकेट देखते ही नहीं, और देखने के बाद भी फेंक देते। बट दैट इज नॉट अ फेक फोटो, दैट इज अ रियल फोटो। और जब अजय देवगन भी अगर केपी का टीवी में एडवर्टाइज देता है, तो स्टूडेंट्स यूज्ड टू आस्क मी दैट आल्सो। तो अजय देवगन जब केपी का एडवर्टाइज देता है, ही नेवर टेल कि उसपे जर्दा मिला के खाओ, इसको ऐसे मिक्स करके खाओ, नेवर। वो एक माउथ फ्रेशनर के हिसाब से एडवर्टाइज देता है। जर्दा कौन मिलाता है? हम मिलाते हैं। सो वी आर रेस्पॉन्सिबल। हम गवर्नमेंट को बैन करने के लिए तो बोल देंगे, लेकिन अगर हम खुद नहीं समझेंगे कि इसका इंटेंसिटी क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू गिव अ कॉमन एग्जाम्पल। मैं अभी अगर मुस्लिम हूँ, आप अगर हिंदू हो, मुझे पता है मुझे पोर्क नहीं खाना है, आपको पता है आपको बीफ नहीं खाना है, ठीक है, और हम कुछ भी हो हम नहीं खाएंगे उसको। तो व्हाई कांट वी डू दैट इन सिगरेट एंड गुटखा एंड पान मसाला? हमें किसी और को बैन करने के लिए वेट करना ही क्यों है, व्हेन वी कैन आवरसेल्फ डू दैट। okay, we have to control our mind, we have to control, we don't have to allow them to rule us, we have to rule them, right? तो गवर्नमेंट, अगर हम लोग खाते ही नहीं तो ऑटोमेटिकली अगर चलेगा नहीं, तो बैन तो खुद ब खुद हो जाएगा। so that is what you can do। ओके, सो या बिफोर आई स्टार्ट द क्विज सेशन, मैं ये भी बताना चाहूंगी कि हमारी रूबी मैम है, वो एक ऑथर भी है। उन्होंने अपना लाइफ का जर्नी और हाउ टू चेंज योर नेगेटिविटी इनटू पॉजिटिविटी,
उसके ऊपर मैम ने बहुत अच्छा एक बुक लिखा है, उसका नाम है फ्रेग्रेंस ऑफ अ वाइल्ड सोल। तो वहाँ का एक बहुत अच्छा एक कोट है, दैट आई विश we could all give ourselves a chance to feel that beauty of abundance by being of help to others। तो ये बुक आपको Amazon या Flipkart दोनों में मिलेगा। अगर आप चाहते हो तो आप एक बार उसको पढ़ सकते हो, एंड इट विल चेंज। वो बुक पढ़ने के बाद आपका बहुत कुछ चेंज हो जाएगा लाइफ में, द वे यू थिंक। Okay, so yeah, moving forward, Samhita, please carry on with the quiz round. Yeah. You all have to just in the correct answer in the chat box, and let's see who types first and who gives the correct answer. So let's start. Okay, cancer is the dash leading cause of death globally. Okay. Ma'am, are you watching the chat box? Yes, Are you yes, watching? yes. Okay, okay. Sumadrita will be there and वो evaluation कर देगी। Okay, Yeah. okay. So the next तो आप question. also please mention कि ये बहुत tricky questions है, बीच बीच में tricky questions आएंगे। तो before answering, you just look कि कितना right है, कितना wrong है, what is the question, आप समझ लो पहले। ठीक है? Moving forward to the next question. Moving forward to the next question. Cancer is the result of the uncontrolled growth of abnormal cells. Any very fast you all are typing. So it's great to Yeah. I am feeling actually nice कि सब लोगों ने सुना है। Yes. yes, yes. So ma'am, the third one. Cancer cells are dashed in nature, toxic or alkaline. Okay, so I think everyone have finished answering this question. So the next one. Across the globe, DASH is the most common type of cancer that kills men. Lung cancer, prostate cancer, oral cancer, penile cancer. Most of them have given the correct answer, this one. So the next question. Okay, worldwide, DASH is the most common cancer that kills women. Stomach cancer, skin cancer, ovarian cancer, breast cancer. Okay, so the next one. Breast cancer is only diagnosed in women. True or false? Very nice. All have given correct answer. Okay, the next one, please.
Which of the following is not tobacco use, frequent alcohol use, a high fiber diet, all are risk factors? Okay, so the next one, cancer of the blood cells is referred to as dash. Kaposi sarcoma, basal cell carcinoma, mesothelioma, leukemia. Nice. Okay, so over the next one. Question 9. Which tumor is cancerous, malignant or benign? Very nice. Okay, the next one, ma'am. So this is the last. I think this is the last one. No, we have two more. Oh, we have Yes. two more. The most common types of treatment of cancer are chemotherapy, surgery, radiation therapy, all the above. Chemotherapy. Okay, so let's go to the next question. Our immunity depends on which of the following? Food, thought process, breathing pattern, all of the above. Very nice. All answers are coming right. Okay, so the last one, question 12. Every individual has cancer cells present in their body, true or false? Okay, so I think it's over. Anybody left to answer? Please answer quickly and then we'll declare the score. Who came first, second, and third. Yeah. So thank you so much, Samhita, for this quiz session. So before we announce the result and before I get the results, I just want to discuss the answers. So first, cancer is the second leading of death globally. Cancer is the result of uncontrolled growth of abnormal cells anywhere in the body. The answer is true. Cancer cells are dash in nature. Cancer cells are toxic in nature. When we say alkaline, when we tell you eat fruits, eat vegetables, and breathe in oxygen. So that means that all of these three things have alkaline in it, and it is very essential for your body to beat cancer. The next thing is across the globe, dash is the most common type of cancer that kills men is the oral cancer. Worldwide, dash is the most common cancer that kills women. It is breast cancer. Breast cancer is only diagnosed in women. The answer is false. It is diagnosed in both male and female. So, which of the following is not considered a risk factor for oral cancer? So, the question was not considered as a risk factor. Then the answer is a high fiber diet. It is not considered as a risk factor for oral cancer. Cancer of the blood cells is referred to as leukemia. Which tumor is cancerous? Malignant tumor is cancerous. Benign tumor might turn cancerous if you
do not take proper treatment on time. Okay, so number 10, the most common types of treatment of cancer are all of the above. Our immunity depends on which of the following? The answer is all of the above. Then next, every individual has cancer cells present in their body. The answer is true. So with this, we conclude the session. Samhita, I have forwarded you the results. So please forward it to the concerned coordinator from the university itself, so that they announce the result and then the student might be happier with that. Okay, Yeah. okay. Yes, ma'am. So the only motive behind the quiz was just to revise the presentation which we have discussed, because cancer is a very serious factor and we have to always focus on that. And we also want to say that we are providing virtual internship to the students. If someone of you are interested and you feel that you should join the cause, you should make this society a cancer free society, then please come and join hands with us. We will always welcome you. And if the interns are very proactive and they work very properly, then we also provide placements to them in our organization. So yeah, that's all about that. And also, if you know any cancer patient who need our help apart from the medicines, then you can contact us in our helpline number, that is 8691 000 800 8691 000 801. So you can contact them. So Samhita, have you So, ma'am, forwarded the results? yes, Yeah. ma'am, I would request you to declare the scores, declare the winner. I have sent you, I have forwarded you. So could you just please announce? Ma'am, you have to unmute yourself. Hello. Yes, ma'am, you're audible. Firstly, I want to thank Shumki Begum ma'am for this very, very informative, helpful session. And also, I'm thanking Sanjeevani Lyme Cancer. And just now, Samhita shared the results. Shreya is took the position first. Shreya and Chanakya took second, and Ivy madam get third position. Congratulations, everyone. So if you all are there, please unmute and turn on your video, and please share your experience. How was it? Yeah. Yeah. Shreya, Yes. unmute yourself Yes, ma'am. and share your experience. Ma'am, it was a very nice experience. I got to learn about many things about prevention and also how to help patients, cancer patients. So I'll carry it forward and help them, try to help them. Thank you so much. So the next one, This is Chanakya. Can you please share your experience? Chanakya, unmute yourself, please, and share your experience. Might be he's very shy. Oh. He's like, he did not expect to win, might be. So he's Yes. like, okay, I need some time. Okay, Yeah. ma'am, I would request Ivy ma'am to share. And she's facing some network issues. Okay, no problem. Okay, Ivy, now she. Hello, on behalf of Ivy ma'am, I am thanking Sanjeevani Live Beyond Cancer. Okay, because she informed me that she is facing a huge problem with network. Okay, thank Yes, you. ma'am. Yeah. Thank you, ma'am. Samhita, please.
Yeah, so thank you everyone, and thank you so much, Kakali ma'am. You were a constant support. Thank you everyone for attending the session, and I see many people here apart from students. There are many people who are very elder to me. Thank you so much for being constantly there and listening to me. And yeah, hope we will get many opportunities to work together. And if any one of you are interested to do virtual awareness or virtual internship with us, you can contact us. Okay. So Samhita, can yes, Yes, ma'am, we'll proceed with the pledge. I think yes, we can proceed with the pledge. I request everyone to unmute yourself because we are going to recite the pledge. Yeah, so we will take the pledge together. I pledge to be a true supporter I pledge to be a true supporter in eradicating cancer from the society. in eradicating cancer from the society. I will try and do my best to support cancer awareness I will try I will try to support cancer awareness campaigns now and all my life. now and all my yes, life. now all my life and all my life. I will ensure that my parents go for a health checkup I ensure Ensure that my parents go for a health checkup every 6 months. every 6 months. I Every pledge 6 to months. promote a healthy lifestyle I pledge to promote a healthy Please lifestyle promote Lifestyle lifestyle, food habits within my family and within my family and friends. will never indulge in I will never Indulge in encourage any unhealthy activities such as chewing tobacco or unhealthy activities such as tobacco or pledge to spread awareness about cancer. I pledge to about cancer Impact I can today as many people as I can. I place awareness. Thank you so much. Yeah, with this we conclude the session. And Samhita, do you want to say something or we can conclude here? no, it's an honor for me to be here, and I hope you all have gained uh, information, and I hope we will fight together to spread awareness. And with this, we will end this session, and we hope forward to meet you soon with this kind of session. Thank you so much. Can I say something? Yes. Yes. I, Subhasidas, on behalf of the Medical Assistance Cell BPINT, thanks to the honorable delegates who blessed us with their presence. I must mention our deep sense of appreciation for Ms. Sumita Nath for his work, and I heartily congratulate to all the participation for their active participation in this event. We can arrange this type of event in future in the collaboration with Sanjeevani. Thanks Thank you to so the much. Thank you so much. Okay. Thank you so much. And with this, we are ending the session. Hope everyone will take care of themselves, drink lots of water, fruits, and vegetables. Yeah, so take care of yourself. Bye. Have a good day. Have a good day. Thank you. Bye. Okay. Bye.